को लिए चलते हैं जहां इस वक्त वज़ीर आला के इंजीनियर मीर मुकाम इस वक्त लाइव खिताब कर रहे हैं। 12 बजे के वाले शमा नूर शपे 12 बजे को دا الله احسان چې هغه پوار فوټینګ او دا زټولي شانګلې خلکو ته بیا بوردو کې با ټول پاکستان خلکو ته ان شاء الله مخاطب کېږم. خود دې کله په شانګله کې ولاړم نو یوازې دانا چې د پورن مخوزو مارتون فیډر امپرو شو جوړ شوی بخت عالم خان ناسته دغه ایشو بچکه سر کې چې زه بچکه سر د تلم د چکه سر خلکو وې چې زمونږ دوه مطالبي دي او چې زمونږ دا کم لاین دی د تا کوټ نه چکه سره پورې چې کم صورتحال له ما وا خبره ده چې الله اختیار راکړي نو زمونږ هم خواهش ته چې دا بدل کو زبردست ماډر جوړ کو نن دا الله تعالی احسان نه پاغیم زبردست کار روان دی دا سید بشام زبا خبرو کوم چې خبره زما نه داله ولې دنه چا پورې خبرې کول غواړم خو حقیقت دی په بشام کې جما کلا زمخ کې وزیر مو ګری سټیشن منظور کړي او بیا می بشام ته فیډر منظور کړي نو چې کلا زما غ پولونه راغلي دا فهم د کنستراکشن ایکسین نه نهسته تعلق هم د بشام سره ده نو چې کله هغه پولونه هم را شفت شو زموږ حکومت ختم شو او د پی ټی آی حکومت راغی نو هغه ټول پولونه د بشام بازار نه غونډ کړه واپس ویوړه ودا یې نیچه والا روډ کې دا فیډر او دا ستري نه پرې دی واپس وړای نو هغه دروغجن زبر هغه باره کې سوې چې هغه زمام منظور شوی ستنه پولونه دیم واپس وړه او دا جرأت پکې نه و چې هغه پاتې کړي وي حالانکه د نیچه وزیر ما نالایقه چې ټول ورځ به دروغ واغو نو دا غواغه مسله مال او کته د کوټکینا ګری سټیشن ګوره د غوربند او د کانا پورې هغه هم هغه به ورځ د 15 کروڑ روپو بلاغت او لما فیډر منظور کړي او د غټو ستنو منظوري چې دغه سایت تخپل پځه دې سایت تخپل پځه او هغه سایت تخپل پځه نو زه دا ویم چې را زبر کارونه کې نظم د الله تعالی په دې ګریډ کې اردو خیر میں اردو میں بعد میں آؤں گا خیر کوئی بات نہیں اردو میں بات کروں گا پورا اور لائے والا پشتو بھی سن لے آج پورے پاکستان اور دنیا پشتو بھی سن لے کہ پشتو بھی بول تو میں زبا زو داویم چیرا دا اللہ تعالی احسان دا خوب لیدل چې څنګه ہے اور اولی منصوبہ او بیا ډېر د افسوس خبره ما ته ډېر دوک کېده چې یو منصوبه راوړل منظورول هغې له فنډ د هغې ټنډرې کېدل او بیا په یو قلم ختمول څومره ظلم د دې شانګلې د دې غرونو خلکو سره دې ظالمانو کړی زه یم چې دا ظالمان دا بیټ بیا دلته څنګه راوړي دا خو دا بیټ دوله خس خس کول تاسو له غواړي تاسو له دا غیرت او جرأت کول غواړي دا هغه بیټ دی چې کوم ایکسپریس وی ما د بشام نه خواز آخری ته منظور کړی د اربون روپو بلاغت سے د میاں محمد نواز شریف سے په دور کې پولنی فرصت کې پولنی قلم کې آغا ایکسپریس وی دوڑا کړه تر کلام پورې مو دا په دې غرونو کې دا میر مقام په سیاسي بنیادونو جوړی دل طرف ایکسپریس وی کم ضرورت ده دوله شرم نه ورځي چې بیا راځي او د شانګلې خلکو ته مخاطب کیږي دوله شرم کول پکار دی خپل گریوان کې دوی د قتل پکار دی دا اللہ تعالی احسان دے چې زمانہ سو زمان مرجون ستاسو پارا دے در قوم خدمت دا پارا دے انشاءاللہ تعالی دا آخری سان سا پورے چې سو پوروی دا جذبے سر بجاری ساری چرت بتازو خلق السلام علیکم وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں سائرہ سید اور میں ہوں یاسر خان شہر شہری خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی کی مچھر کالونی میں افسوسناک واقعے کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے نیشنل پریس کلب کے سامنے سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا
मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार करने की बजाय कराची प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो निहायत ही गिरा हुआ अमल है। रियासती इदारों को बताना चाहते हैं कि अपनी ज्यादतियां बंद करें, अब दुनिया को भी आपके अमलों का पता चल चुका है। सिंध हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए संजीदा क्यों नहीं है? कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। मोहम्मद अली शेख, जफर खोसो, नोमी सिंधी और दीगर की सरबराही में एहतजाज किया गया। धड़ावाला शहर और गिरदर अवाम में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुर्गी के गोश्त के दाम आसमानों से बातें करने लगे। गरीब दिहाड़ीदार तबका हो शरबा महंगाई से परेशान, कंट्रोल प्राइस इंतजामिया और अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। ज़रूरत ज़िंदगी के अशिया अलावा मुर्गी के गोश्त के दामों से गरीब आवाम दिहाड़ीदार तबका बेहद परेशान है और प्राइस कंट्रोल इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। चिकन फरोख्त करने वाले माफिया अपनी मन मर्जी के रेट लगाकर गरीब आवाम दिहाड़ीदार तबका का खून चूस रहे हैं। मुर्गी के गोश्त पर हौश रुपा खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल इंतजामिया और हुकूमत वक्त से गरीब आवाम की अपील है। चिश्तिया में चक अब्दुल्ला के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जहां बाग, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये अफसोसनाक हादसा बहावल नगर रोड पर वाक़े अड्डा चक अब्दुल्ला के करीब पेश आया, जहां पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में मियां बीवी और उनका 10 साला बेटा मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि जिंदा बचने वाले बहन भाई शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 ने जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक और जख्मी होने वाले एक खानदान से थे जो चिश्तिया के रिहायशी थे। जिला खुशाब की मिल्स और फैक्ट्रीज के मालिकान और मुंतजिमीन का एक इजलास डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब असदुर रहमान की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें DPO खुशाब की तरफ से सिक्योरिटी के बारे में ज़रूरी हिदायत जारी की गई। इस इजलास की कार्रवाई से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब असदुर रहमान ने जिला खुशाब में चलने वाली मिल्स फैक्ट्रियों के मुंतजमीन और मालिकान के साथ मीटिंग की। इस मौके पर DPO ने कहा कि आप अपने पास काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को रजिस्टर करें और इनकी वेरिफिकेशन करवाएं। फैक्ट्रियों की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे नस्ब करवाएं। किसी भी मशकूक सरगर्मी को फौरन पुलिस के नोटिस में लाया जाए। दौरान मीटिंग मिल्स फैक्ट्रियों के मुंतजमीन और मालिकान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब असदुर रहमान को अपने मुकम्मल ताउन की और सिक्योरिटी निज़ाम को बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई। शहर इक़्तिदार की पुलिस आपे से बाहर हो गई। पुलिस का अमी बीवी को PTI का परचम पकड़ने पर गिरफ्तार किया और रावलपिंडी से इस्लामाबाद की हदूद में क्यों दाखिल हुए। PTI का परचम लेकर खातून से बुरा सलूक किया और रोडों पर घसीटा गया और उनको हरासा भी किया गया। हाफिजाबाद के नवाही इलाका काले की मंडी में अरसा दराज से बिजली की तार और ट्रांसफार्मर चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। जलालाना के करीब मुल्ज़मान ट्रांसफार्मर और तार काटकर शाहजोर डाला में लोड कर रहा था। काली की मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना था कि तार चोर गैंग अरसा दराज से इलाका भर से ट्रांसफार्मर और तार चोरी में मुलव्वस है। मुल्ज़मान ने अब तक लाखों रुपए मालियत की तारें और ट्रांसफार्मर चोरी कर चुका है। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फैजगंज गुज़श्ता सैलाबी बारिशों के बाद पानी अभी तक 4 से 5 फुट मौजूद। गांव अब्दुल खालिक सलंगी में नौजवान की लाश 1 किलोमीटर पानी से गुजार कर कब्रिस्तान पहुंचाई गई। फैजगंज तहसील की यूनियन काउंसिल जाफर खान जलानी के गांव अब्दुल खालिक में सैलाबी बारिशों का पानी 4 से 5 फुट अभी तक मौजूद न होने की वजह से तमाम रास्ते पानी में डूब चुके हैं, जिससे मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। गांव वालों की मुश्किलात में इजाफा इस वक्त हुआ जब एक नौजवान का इंतकाल हुआ तो वो अपना आखिरी सफर भी इस सैलाबी पानी से गुजर कर कब्रिस्तान तक पहुंचा। 22 साला नौजवान इम्तियाज अली सोलंकी का गाँव वालों ने अपने कांधे के बजाय पानी से गुजार कर कब्रिस्तान पहुंचाया। इस मौके पर इलाका वकील ने कहा कि इंतजामिया को कई बार पानी निकालने के लिए दरख्वास्तें भी दी हैं मगर एक भी नहीं सुनी गई।
ठट्ठा में एक बार फिर रिस्क अलाउंस बंद करने और पैरामेडिकल के जायज मुतालबात हल ना करने के खिलाफ रोलर हेल्थ सेंटर घारों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज ओपीडी का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। पैरामेडिकल के सरफराज सुमरो और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने रिस्क अलाउंस बंद कर दिया है। पोलियो बाइकआउट किया गया, जिसके बाद एक समरी दिखाकर एहतजाज खत्म करवा दिया गया। पोलियो मुहिम होने के बाद समरी काम रोक दिया गया और हेल्थ मिनिस्टर मैडम अजरा पेचो ने नर्सेस के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पैरामेडिकल और डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान खतरनाक वायरस की लपेट में आ सकते हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत ने रिस्क अलाउंस बंद करके हमारी साथ सौतेली बात जैसा सलूक किया है। सिंध हमारे जायज मुतालबात हल न किए तो दूसरी सूरत में एहतजाज के दायरे को मजीद वसी करेंगे। मौसम के करवट बदलते ही बूरेवाला के शहरियों ने ताज़ा मछली पॉइंट का रुख कर लिया, जहां पर दरियाए सतलुज की ताज़ा मछली खरीद रहे हैं। मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बूरेवाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद चौधरी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद है। सर्दी की सौगात समझी जाने वाली मछली को जो है ख़रीदने के लिए शहरियों ने बूरेवाला में मछली बाज़ार का रुख कर लिया है। इस वक्त जो है मेरे साथ एक शहरी में मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा, आप कौन सी मछली ख़रीदने आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम बूरेवाला में मछली ख़रीदने आते हैं। ताज़ा और फ्रेश मछली मिलती है। रोहू, हम रोहू ख़रीदने आए हैं। ठीक है, जाकर फ्राई करनी है, घर जाकर फिर फैमिली के साथ बैठकर खाना है और इन्जॉय करना है माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों को कहना है कि हमने यहाँ पर रोहू मछली ख़रीदनी है और घर जाकर जो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खानी है। जी अफसोस में खबर शामिल करते हैं। सरगोदा रोड चंड पुल के करीब पीएसओ पेट्रोल पंप के सामने हाईएस और सुजुकी की पिकअप के दरमियान रोड ट्रैफिक हादसा हुआ है। रेस्क्यू 1122 की टीम जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हादसे के नतीजे में 3 औरतों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जिला बदीन के तहसील तलहार में साबिक वजीर आजम इमरान खान पर होने कातलाना हमले के खिलाफ कारकुनों का बदीन शाहराह से प्रेस क्लब तक रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए कारकुनों ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत में हमारे कायद पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। वफाक हमारे कायद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने में नाकाम हो गई। हम अपने पुरअमन मार्च कर रहे हैं जिस पर गोलियां बरसाई गई हैं। हमारे कायद पर कातिलाना हमला साबित करता है कि हम सच की राह पर हैं। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमारे कायद पर हमला हुआ। हम मुतालबा करते हैं कि आला अदलिया और वफाकी हुकूमत से हमारे कायद पर हमला करने और इसमें मुलविस कुव्वतों को कानून के कटहरे में लाया जाए। डेरा गाजी खान शहर के वस्त में गुजरने वाला गंदा सेम नाला को अपग्रेड करके खूबसूरत नहर में तब्दील कर दिया गया। शहरियों में असासा की हिफाजत का शऊर बेदार करने के लिए कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार की ज़ेर क़यादत वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें अफसरान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि इदारों और मुखय्यर हजरात के ताउन से सिविल माइनर की तरीन आराइश की गई। शहर में मौजूद 2 किलोमीटर के इलाकों को खूबसूरत, सरसब्ज़, शादाब और साफ सुथरा बना दिया गया। स्ट्रीट लाइट से सिविल माइन जगमगा उठी है। सिविल माइंस के किनारों को ग्रीन बेल्ट्स में तब्दील करके खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं। कमिश्नर ने शहरियों से कहा है कि वो अपने असासों की खुद हिफाजत करें ताकि उसको मजीद बेहतर किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार ने कहा कि सिविल माइनर की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। डरावाला शहरों गिरदनवा में होलसेल के हिसाब से अताइयों की भरमार। मुतलका इदारों की जानिब से इंसानी जानों से खेलने की खुली छुट्टी। नशावर इंजेक्शन और टैबलेट की फरोख्त। खुलेआम नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर आला हुक्काम का नोटिस। ज़राए के मुताबिक माल की चमक और मुतलका अफसरान की परवाज़ों पर गहरा असर छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज अतियात एक स्ट्रिंग माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जबकि शहरों गिरदोनवा कुछ ऐसे इलाके हैं जहां रोज़ बारोज़ अतियात बढ़ती चलती जा रही हैं। इन अताइयों की हाथों न जाने कितने हंसते बसते घर उजड़ गए हैं, जबकि कुछ मुतलका इदारे हालात को जानते हुए भी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं।
उमरकोट की तहसील कुंडरी में तालुका अस्पताल कुंडरी के पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस और डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबात के हसूल के लिए आज ओपीडी का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया, जिसकी वजह से मरीज मुश्किलात से दो चार हो गए। इस मौका पर एहतजाज करने वाले स्टाफ का कहना था कि सिंध हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, हमारा रिस्क अलाउंस खत्म करके हमारे बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया है। हमने कोरोना जैसे खतरनाक वबा के दौरान काम किया, जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और अमले को रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। हुकूमत सिंध ने यू टर्न लेते हुए रिस्क अलाउंस खत्म कर दिया है, लिहाजा रिस्क अलाउंस और दीगर मुतालबात जल्द अज जल्द पूरे किए जाएं और दीगर सूरत एहतजाज का सिलसिला वसी किया जाएगा। नौशहरा के इलाके ओकोड़ो खटक दारुल उलूम हक्कानिया में शहीद हजरत मौलाना समीउल हक शहीद की याद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तकरीब में शहीद नामूसे रिसालत मौलाना समीउल हक की दीनी और सियासी खिदमत पर रोशनी डाली। मजीद जानते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। शहीदी नामूसी रिसालत कायद जमीयत हजरत मौलाना समीउल हक शहीद की याद में दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में एक पुरवकार और अजीम शान तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मोहतमिम और वफाकुल मदारिस के नायब सदर मौलाना अनुल हक हक्कानी, मौलाना यूसुफ शाह हामिदुल हक हक्कानी के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के चारों सूबों के अमरा ने शिरकत की और तकरीब से खिताब फरमाया। तकरीब में मुहिब्बुल वतन और आलिमी रहनुमा नामूसी रिसालत शहीद हजरत मौलाना समीउल हक की खिदमत को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी दीनी, सियासी, इल्मी और तसनीफ़ी खिदमत पर रोशनी डाली। इस मौका पर मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों और नजरी पाकिस्तान की हिफाजत में कसर उठा नहीं रखी जाएगी और हमारे उलमाए हक का खून रायगा नहीं जाएगा। थाना गुजर खान पुलिस ने अहम कार्रवाई के दौरान जीटी रोड पर गन पॉइंट पर शहरियों को लूटने वाले 3 रुकनी बैनुल-अज़लाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान जीटी रोड पर खड़ी और खराब गाड़ियों को लूटते थे। मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किया गया है। शनाख्त परेड के बाद मुलजमान से माल मसरूका की बरामदगी को यकीनी बनाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।